आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। TV11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जगनमोहन रेड्डी की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में मुंतकिल हो गई। रियासती असेंबली में तेलंगाना करारदाद पेश करने की जरूरत नहीं, जयपाल रेड्डी का बयान। सीमा आंध्रा में कर्फ्यू के पेश नजर आम जिंदगी मफलूज। जौला गुप्ता पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश। अब खबरें तफसील से। सीनियर तेलुगु देशम लीडर एस चंद्रमोहन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की मौजूदा भूख हड़ताल अलहदा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ नई दिल्ली में 7 अक्टूबर से भूख हड़ताल का आगाज कर रही है। उन्होंने सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति चंद्रशेखर राव के बयान की मजम्मत की, जिसमें सीमा आंध्रा इलाके के बजाय इलाके तेलंगाना के लिए पैकेज का मुतालबा किया गया है। सीमा आंध्रा में शदीद एहतजाज के पेश नजर जिले विजयनगरम में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और शहर में सूरत हाल कशीदा हो गई है। पुलिस के मुताबिक कर्फ्यू हफ्ते की रात 9 बजे से नाफिज कर दिया गया है। हालात काबू में आने तक जारी रहेगा। एहतजाजियों ने सदर प्रदेश बी सत्यनारायणा के अफराद खानदान की जायदादों को नुकसान पहुंचाया और इस दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा इलाकों में आज बंद के दूसरे दिन भी आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। APNGOs और दीगर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने 48 घंटों का बंद बनाने की अपील की है। मरकजी वजीर डॉक्टर एस जयपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद तमाम हिंदुस्तानियों का है और वो किसी रियासत की जागीर नहीं। उन्होंने कहा कि दस्तूरी तौर पर हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई की तरह एक हिंदुस्तानी शहर है और अगर हम तिजारती तरीके से देखते हैं तो ये आलमी शहर में तब्दील हो गया है। जयपाल रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद सीमा आंध्रा या तेलंगाना का नहीं हो सकता। ये तेलंगाना की जाती जायदाद नहीं है। हैदराबाद पर तमाम हिंदुस्तानियों का बराबर हक है। हैदराबाद रियासत की तकसीम के बाद भी कहीं नहीं जाएगा। जयपाल रेड्डी ने कहा कि रियासती असेंबली में तेलंगाना करारदाद पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। తర్వాత ఈ 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో కొందరు సర్వీసులోనే ఉండిపోతారు. పౌరులుగా ఏమి ఇబ్బంది ఉందండి? ఉంటే కూడా వాళ్ళు ఎలా ఉండదలుచుకుంటే వాళ్ళు ఎట్లా సమస్య పరిష్కారం చేయాలా, దానివల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆర్థిక భారాన్ని
ఆ పాపం కేవలం సీమాంధ్ర ప్రభుత్వం ఎలా భరిస్తుంది, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. పెన్షన్స్ అన్నిటండి ఇవన్నీ మన రాజ్యాంగంలో పరిష్కరించలేని సమస్య రాజ్యాంగ పరిధిలో. నా దృష్టిలో ఒక రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రవేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా మన భారతదేశం కంటే మంచి రాజ్యాంగం ప్రవచనక్కర్లేదు. ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎలా అయినా మార్చుకోవచ్చు. taking an appropriate decision and all. There are issues, but the issues are 50 ఏళ్ళుగా పరిష్కారం కాలేదు. But 6 weeks time is given to the group of ministers. How do you think they will kind of bring out a solution that has not been there for the last 50 odd years? Please understand, a policy decision has been taken in regard to the future of Bangladesh. Now that a decision has been taken in favor of bifurcation, the issues you are referring to have arisen from that decision. Those problems will be addressed legally, financially by the group of ministers. They don't address political problems. How is Congress party to win the polls? How is somebody else to win the polls? Those questions cannot be settled by the group of ministers. And second issue, to supplement this, you know, for development of the capital, వేరే వాళ్ళు క్యాపిటల్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి దీనికి అంతా either this region or the other region will require huge funds. ఇవాళ ఉండే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ లో జీతాలు తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో. హౌ డు యు థింక్ సెంటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లమ్? I think we should not bother too much about the burden of the central government. The central government has made a commitment in regard to the expenditure to be incurred for the construction of a new government headquarters and capital in the other regions, for Seemandhra friends. In fact, నేను ఒక మాజీ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా చెప్తున్నాను, అసలు ఒక హైదరాబాద్ పైన ఇంత ఆధారపడడం ఏంటి? మనం మాజీ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి చెప్తున్నాను నేను. హైదరాబాద్ ఒకటే నగరమా? ఇటువంటి నగరాలు మనకి ఎన్ని కావాలి? తెలంగాణలో మరొకటి కావాలి. వరంగల్ జిల్లా, వరంగల్ పట్టణం మరొక హైదరాబాద్ ఎందుకు డెవలప్ చేయకూడదు? దానికి కారణం ఏంటంటే ఇంతవరకు భారతదేశంలో నగరీకరణ మందగతిలో వచ్చింది. ఇక ముందు స్పీడ్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు, దేశం మొత్తంలో కానుంది. ప్రపంచంలో లెక్క అయితే మన దేశంలోనే ఈ పట్టణీకరణ తక్కువ. ఇప్పుడిప్పుడే స్పీడ్ అందుతుంది. ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఇంకా పెంచి దాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేయడం కట్టి కొత్త నగరాలను పంపిస్తుంది. अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। अर्रहीम पोल्ट्री, सुल्तान नगर, एरागड्डा और बोराबंडा में मुकीम अफराद के लिए खुशखबरी। नए शुरू करदा अर्रहीम पोल्ट्री में होलसेल कीमत पर गोश्त दस्तयाब। आपके घर शादी ब्याह हो या दावत, पार्टी हो या त्यौहार, अर्रहीम पोल्ट्री पर ऑर्डर्स की सहूलत। हमारा पता है अपोजिट मस्जिद मोहम्मदिया, सुल्तान नगर, एरागड्डा, हैदराबाद। फोन नंबर्स 9849084093, 9390865754 और 0402383554। गौस किराना एंड जनरल स्टोर, आपके घर की हर जरूरत के लिए हम अक़साम से आरास्ता। गौस किराना एंड जनरल स्टोर, दाल, सोना मसूरी चावल, बासमती चावल और दीगर अक़साम के चावल, असली बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट होलसेल दामों पर दस्तयाब। आपकी हर जरूरत के लिए गौस किराना एंड जनरल स्टोर तैयार है। हमारा पता है न्यू गौस किराना एंड जनरल स्टोर, अपोजिट अयप्पा स्वामी टेम्पल, NRR पुरम कॉलोनी, साइट 2, बोराबंडा, हैदराबाद। फोन नंबर्स 9700175276,
9700261872। नित्या सिरी एनक्लेव्स, अगर आप अपना जाती मकान चाहते हैं तो आइए नित्या सिरी एनक्लेव्स। GHMC से इजाजत शुदा अमन का माहौल, डुप्लेक्स विलास, क्लब हाउस, 24 घंटे सिक्योरिटी इंतजाम, खूबसूरत पार्क, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, 42 से 52 फीट रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता नित्या सिरी एनक्लेव्स। गेटवे कम्युनिटी के नजदीक नित्या ग्रुप आपके इस्तकबाल के लिए मुंतजिर हैं, तो आइए देर किस बात की, आज ही अपना घर बुक करवाइए। हमारे फोन नंबर्स हैं 9848149687, 9912345349, 8850170002। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपनी रिहायशगाह पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये सिलसिला आज दूसरे दिन में मुंतकिल हो गया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस तश्कील तेलंगाना से मुतालिक मरकज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और उन्होंने रियासत के मौजूदा बहरान के लिए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को जिम्मेदार करार दिया और राहुल गांधी को वजीर आजम बनने के लिए अवाम के जज्बात इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया। जगन रेड्डी ने सोनिया गांधी के फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की। इस मौके पर पार्टी कारकुन और कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बोराबंडा इलाका अल्लाहपुर में कल्तन नामी शख्स ने सिमिति हाउस होल्ड कॉम्प्लेक्स नामी दुकान खोली, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी के सामान जैसे स्टील आइटम्स, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और बरकी अशिया शामिल हैं। लेकिन यहां पर खरीदी के लिए कम से कम 1 लाख जरूरी है, जिस पर 45% छूट है, जिस पर यहां की आवाम ने पैसे दिए। लेकिन आज 15 दिन हो गए इन्हें अपना सामान नहीं मिला, जिस पर आवाम ने TV 11 के नुमाइंदे से अपील की है कि उन्हें इनका सामान दिलाएं। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। उस्मानिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ने वाली मोनिका को डेंगू की वजह से मौत वाक़ई हो गई। OU अस्पताल के सामने तलबा ने धरना दिया। तलबा ने कहा कि उस्मानिया हॉस्टल में कोई सहूलत नहीं है और मजीद कहा कि मोनिका के अफराद खानदान को मुआवजा फराहम करे। मोनिका कुटुंबाనికి వెంటనే కల్పించాలి, ఆశ చేయాలి।
अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। अर्रहीम पोल्ट्री, सुल्तान नगर, एरागड्डा और बोराबंडा में मुकीम अफराद के लिए खुशखबरी। नए शुरू करदा अर्रहीम पोल्ट्री में होलसेल कीमत पर गोश्त दस्तयाब। आपके घर शादी ब्याह हो या दावत, पार्टी हो या त्यौहार, अर्रहीम पोल्ट्री पर ऑर्डर्स की सहूलत। हमारा पता है अपोजिट मस्जिद मोहम्मदिया, सुल्तान नगर, एरागड्डा, हैदराबाद। फोन नंबर्स 9849084093, 9390865754 और 0402383554। गौस किराना एंड जनरल स्टोर, आपके घर की हर जरूरत के लिए हम अक़साम से आरास्ता। गौस किराना एंड जनरल स्टोर, दाल, सोना मसूरी चावल, बासमती चावल और दीगर अक़साम के चावल, असली बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट होलसेल दामों पर दस्तयाब। आपकी हर जरूरत के लिए गौस किराना एंड जनरल स्टोर तैयार है। हमारा पता है न्यू हाउस किराना एंड जनरल स्टोर, अपोजिट अयप्पा स्वामी टेम्पल, NRR पुरम कॉलोनी, साइड 2, बोराबंडा, हैदराबाद। फोन नंबर्स 9700175276, 9700261872। नित्या सिरी एनक्लेव्स, अगर आप अपना जाती मकान चाहते हैं तो आइए नित्या सिरी एनक्लेव्स। GHMC से इजाजत शुदा अमन का माहौल, डुप्लेक्स विलास, क्लब हाउस, 24 घंटे सिक्योरिटी इंतजाम, खूबसूरत पार्क, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, 42 से 52 फीट रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता नित्या सिरी एनक्लेव्स। गेटवे कम्युनिटी के नज़दीक नित्या ग्रुप आपके इस्तकबाल के लिए मुंतजिर हैं। तो आइए, देर किस बात की, आज ही अपना घर बुक करवाइए। हमारे फोन नंबर्स हैं 9848149687, 9912345349, 8850170002। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने आज सुबह फशार खून, ब्लड प्रेशर, काबिल फहम इलाज के लिए दवाखानों का आगाज किया। बीपी जो एक बड़ी बीमारी समझी जा रही है, इसके लिए हिंदुस्तान में सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स ने बीपी दवाखानों का आगाज किया। अपोलो हॉस्पिटल्स के नाज़िम इंतजामिया MS संगीता रेड्डी ने अपने बयान में कहा, और मजीद इन्होंने अपनी बात में कहा, 25% शहरों में और 15% देहातों में बीपी के मरीज हैं। और हेल्थ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि 80 ता 90 लाख आदमी इस बीमारी के शिकार हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में बीपी के मरीजों का मुकम्मल इलाज करना और हिंदुस्तान को ऐसी बीमारियों से बचाना। इनका अहम मकसद ये है बोल के डॉक्टर संगीता रेड्डी ने अपने बयान में कहा। 1983 ईस्वी में डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने अपोलो हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया था, जो अब अव्वल दर्जे में है। अपोलो हॉस्पिटल्स के जिम्मेदार में 8,500 बेड्स, 54 हॉस्पिटल्स, 1200 मेडिकल शॉप्स और 100 डाइजेनिक शॉप्स हैं। इस मौके पर MS संगीता रेड्डी, डॉक्टर हरि प्रसाद, डॉक्टर मोहम्मद रफी, पद्माश्री डॉक्टर C वेंकट एस राम और डॉक्टर जनरल मनदीप सिंह मौजूद थे। मोहम्मद रफी, मणिदीप सिंह తదితరులు పాల్గొన్నారు. వెంకట్రామ్ and Dr. Rafi
ఇద్దరు యుఎస్లో క్వాలిఫైడ్ అయిన బ్లడ్ ప్రెషర్ స్పెషలిస్ట్. ఇది చాలా మందికి బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి తెలుసు కానీ దాని సీరియస్నెస్ అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతారు. ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ క్లినిక్లో 2 or 3 స్పెషలైజ్ పాయింట్స్ ఉంది. ఉత్త బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ మాత్రమే కాదు, ఒక కొత్త ఎక్విప్మెంట్ పెరిస్కోప్ అని, అది ఇలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్. యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు హై బీపీ పోయినా కానీ బ్లడ్ వెసల్ ఇస్ ఇలాస్టిక్, దేర్ఫోర్ దాంతో ఏం ప్రాబ్లం కాదు. యాజ్ ఏజ్ గోస్ హైయర్ ఇలాస్టిసిటీ తక్కువ అవుతుంది, దేర్ఫోర్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కెన్ లీడ్ టు ఇట్లా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్ కానీ. అప్పుడప్పుడు ఇంటుంటాం టెన్షన్ వల్ల ఆయనకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ లింక్డ్ టు బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ ఇలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్. సో అది కనుక పెరిస్కోప్తో టెస్ట్ చేసి దానికి అప్రోప్రియేట్ మెడికేషన్ తీసుకుంటే ఏదైనా ఇట్లా సడన్ షాక్ తట్టుకునే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. సో ఆ ప్రోటోకాల్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకొని ద బ్లడ్ ప్రెషర్ క్లినిక్స్ విల్ క్రియేట్ అ స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. అది ఈరోజు లాంచ్ చేశాము. హైదరాబాద్ సిటీలో 3 క్లినిక్స్ ఉంటుంది. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ విల్ మేక్ ఇట్ 10 క్లినిక్స్ అండ్ ఇది ఎక్స్పాండ్ టైప్. सीमांध्रा में जारी एहतजाज के पेश नजर का अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरकी ओहदेदारों ने भी इस हड़ताल में हिस्सा ले लिया है। आज सुबह 6 बजे से हड़ताल का आगाज करने से अवाम को बरकी मजदूर रहने की वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही है। पिछले दिनों सीमा आंध्रा में बरकी सरबराह होना रुक गई थी। कई गाँवों को बरकी की सरबराही रुक गई थी, जिसकी वजह से वो अंधेरों में चले गए। रायलसीमा में जिले अनंतपुर, कर्नूल, कड़पा में मुकम्मल तौर पर बिजली की सरबराही रुक गई है। चित्तूर जिले में मधनापल्ली और तुम्बलापल्ली में भी डिवीजन में 360 गांव में बिजली रुक गई है। श्रीसलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में 770 मेगावाट बिजली रुक गई है। जिले गुंटूर में ग्रैंको ओहदेदार भी इस हड़ताल में शामिल थे। विजयवाड़ा और कृष्णा जिले में बिजली की रुकावट हो गई। शहर गांव में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों जगह अंधेरा छा गया है। इस हड़ताल की वजह से शुमाली हिंद को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सीमा आंध्रा में इस हड़ताल की वजह से रेलों की आमोदरफ्त रुक गई है। अस्पताल, ज़राअत, पानी की सरबराही में मुश्किलात हो रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बताया कि 30,000 से ज्यादा अफराद बरकी ओहदेदार इस हड़ताल में शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक हाईकमान तेलंगाना का फैसला वापस नहीं लेगी, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड में लाने वाले सलमान खान ही है, जिन्होंने कई अदाकारों को बॉलीवुड दुनिया में मुतारिफ करवाया। सोनाक्षी सिन्हा अपनी पहली फिल्म दबंग से शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गई। तूने तो पल भर में चोर किया रुझान मोरा जिया। इत्तेफाक से दबंग के सेक्वल दबंग 2 ने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इस तरह रॉडी राठौर सन ऑफ सरदार भी कामयाब रहे। इनकी चंद फिल्में ही नाकाम रही, जिनमें जोकर वगैरह शामिल है। इन दिनों इसकी कई फिल्में आ रही है। पाकिस्तान में बॉलीवुड अदाकारा की मकबूलियत कोई नई बात नहीं है, लेकिन चंद गिने चुने अदाकारा और चंद बॉलीवुड की शख्सियतें ऐसी है जिन्होंने पाकिस्तान में बेहद पसंद किया गया है, जिनमें दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, गुलजार और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम काबिले जिक्र है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की दुख्तर सोनाक्षी सिन्हा भी पाकिस्तान में बेहद मशहूर हो चुकी है। खास बात यह है कि इनका एक इंटरव्यू पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मुंबई आएगा ताकि वो सोनाक्षी सिन्हा को इंटरव्यू ले सके। इससे खबर लता मंगेशकर और गुलजार के इंटरव्यू पाकिस्तानी टीवी पर पेश किए जा चुके हैं। इस तरह सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की वो तीसरी शख्सियत होगी जो पाकिस्तानी टीवी पर नजर आएगी। दगाबाज रे दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे।
दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हाँ कल मिले कल मिले ये हमको भूल गए आज रे, है दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन की तादीबी कमेटी ने इंडियन बैडमिंटन लीग IBL तनाज़े के मामले में मुल्क की चोटी की डबल्स खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा पर ताहियात पाबंदी की सिफारिश की है। ज्वाला पर इल्जाम है कि इन्होंने IBL में अपनी टीम दिल्ली स्कॉशर्स के कुछ खिलाड़ियों को बेंगा बीट्स के खिलाफ मैच खेलने से रोकने की कोशिश की थी। जराये के मुतालिक एस मुरलीधरन की सदारत वाली तादीबी कमेटी में ज्वाला पर ताहयात पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। हालांकि मुरलीधरन का कहना है कि इन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और ज्वाला को माफ करने या ना करने का फैसला सिर्फ इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के हाथ में है। अगर ज्वाला गैर मशरूत माफी मांगती हैं तो इन्हें इनकी सजा माफ की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। लेकिन बैडमिंटन कोच आरिफ ने इस बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जो 20 ता 25 मिनट खेल के औकात में देरी हुई है और खिलाड़ियों की अदला बदली हुई है, इसमें खिलाड़ी का कोई फैसला नहीं था, वो तो अपने स्पॉन्सर्स के उसूलों पर पाबंद थे। इन्होंने मजीद कहा, अगर एक्शन लेना है तो खिलाड़ी पर नहीं बल्कि स्पॉन्सर्स के खिलाफ लिया जाए। इन्होंने ज्वाला गुट्टा से अपील की है कि वो माफी ना माने क्योंकि इन्होंने कुछ गलती ही की नहीं। मुंबई इंडियंस के चैंपियंस लीग T20 के दूसरे सेमीफाइनल में ट्रेल एंड टुजागो के खिलाफ 6 विकेट से ऐसे वक्त कामयाबी हासिल की जब 5 गेंदें बाकी रह गई थी। फातेह टीम को बैटिंग की दावत देते हुए 5 खिलाड़ियों को 153 पर आउट करते हुए जवाबी अंगेज में 4 विकेट के नुकसान से 157 रन बनाते हुए कामयाबी के जरिए फाइनल में दाखिल हो गई है। Oh, he's got the edge, but beat slip. There you are, first over gone, 12 for no loss. नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।